میں کہہ رہا ہوں کاشگنج کی پولیس نے الطاف کو مارا پولیس اسٹیشن میں, وہ قتل کیا, وہ قاتل ہے تم لوگ. تم دشمن ہو بچوں کے, تم دشمن ہو. تمہارے پاس کیس آیا, ارے تم تحقیقات نہیں, تم تو مرڈر کرنا جانتے ہو. بچے کو لے جا کر مار دیے, اور طرف تماشا دیکھیے کہ اس بچے کے باپ, آپ سوچئے کہ آپ بھی اپنے پیٹ میں اولاد ہے, مجھے بھی اولاد. وہ آپ کا بیٹا ہے میرے بھائی, وہ آپ کا بھائی ہے, وہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کا بھائی ہے. اگر تم مراد آباد میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں کاشگنج میں ہوا, مجھے اس سے کیا کرنا ہے, اگر تم اس بچے کے غم کو اپنے سینوں میں محسوس نہیں کرو گے تو مجھے شک ہوگا تمہارے مسلمان ہونے کا. تم کو اس کا درد محسوس کرنا پڑے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ اگر کسی کے پیر کے تلوے میں اگر کیلا لگتا ہے تو مومن وہ ہے جو اپنے سینے میں اس کی تکلیف کو محسوس کرے. اور حضرت پولیس نے ماشاءاللہ, کاشگنج کی پولیس, آپ یقیناً شیطان کی پہلی اولاد ہیں, آپ ابلیس کی پہلی اولاد ہیں. جو پولیس والوں نے مارا, تم شیطان کی اولاد ہو. تمہارے لطفے میں فرق ہے, تمہارے لطفے میں فرق ہے. میں کہہ رہا ہوں اس باپ کو جو اپنے بیٹے کو کھو دیا, جس کو تم نے پولیس اسٹیشن میں مرڈر کیا, تم اس کے انگوٹھے کے سائن لے کر اس پہ لکھ دیتے ہو کہ یہ بیٹے کے باپ نے یہ لکھا ہے کہ وہ پولیس کی تحقیقات سے مطمئن ہے اور میرے بیٹے نے خودکشی کر کے اپنی جان لے لی. ارے پولیس والوں جنہوں نے حرکت کی, کل اگر تمہاری بیٹی, تمہارا بیٹا ایسا مر جائے گا یا مار دیا جائے گا تو تمہارے دل پر کیا پہنچے گا؟ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. اور آواز کیسے اٹھتی ہے؟ نہیں ہم نے بول دیا, ہم بھی کنڈم کرتے ہیں اس کو, 2 لاکھ بھجا دیں گے, 3 لاکھ بھجا دیں گے. ارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گورکھپور کے ہوٹل میں گپتا صاحب کو پولیس نے مارا, ان کی موت ہوئی, ہم اس کا کنڈم کیے اور کنڈم کرتے رہیں گے. مگر جب گپتا صاحب کی موت ہوئی تو بابا اتر پردیش کے مکھیہ منتری گپتا پریوار خاندان کے پاس پہنچ گئے, بابا پہنچ گئے اور غم کا اظہار کیا, اور جا کر کہا, اس گپتا صاحب کی بیوہ سے کہا کہ آپ فکر مت کریے, ہماری سرکار آپ کے ساتھ ہے. اور میرے خیال سے ان کو 50 لاکھ کا چیک دیا, گورنمنٹ کی نوکری دی, پولیس کے لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا, ان کو گرفتار بھی کیا. اور سماجوادی پارٹی کے بہت چاہنے والے ہیں. آپ کے اکھلیش نے کیا کیا؟ گپتا صاحب کے گھر گئے اور کہا بہن یہ 21 لاکھ کا چیک ہے, یہ 21 لاکھ کا چیک ہے. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, انسان جب پولیس کی کسٹڈی میں مرتا ہے, اگر وہ مسلمان ہے تو اس نے خود سے خودکشی کر لی, اگر وہ مسلمان ہے تو خود سے خودکشی کر لی, اور اس کے باپ سے جھوٹ سے فریب دے کر انگوٹھا اس کا لگا کر لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے, ارے میں زندہ باد کے نعرے اپنے نہیں لگانے والا, سنو میری بات, نہیں آپ سنو میری بات, میں اپنے زندہ باد کے نعرے آپ سے منگوانے کے لیے نہیں آیا ہوں, کیونکہ آپ زندہ ہیں, میں زندہ ہوں, رسول اللہ کی امت ہے, زندہ رہنے والے. اور یاد رکھو اس بات کو, یاد رکھو اس بات کو کہ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا آباد ہے, جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں. یاد رکھو, یہ میرا فیت ہے. مگر یہ حال دیکھیے آپ کہ ایک مسلمان مرتا ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے, کیا میرے خون کی اہمیت نہیں ہے؟ کاشگنج کا واقعہ آپ کے سامنے, ایک نوجوان بچہ ہے, حضرت پولیس اس کو پکڑ کر تھانہ لے کر گئی, اور یہ بہانے لے کر گئی کہ اس کے خلاف, الطاف کے خلاف ایک کمپلین دی گئی کہ وہ کسی لڑکی کو لے کر بھاگا تھا.
पुलिस लेकर जाती है और बाप कह रहा है कि मैं ले जाकर अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया। मैंने खुद, एक बाप कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को ले जाकर पुलिस के हवाले किया कि कर लो आप तहकीकात। उस बाप ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की जो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। बाप लेकर गया पुलिस स्टेशन, तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ, तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले उसने खुदकुशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुड था उसका तागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकुशी ले ली। वाह काशगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए कि 2.5 फीट की टूटी पर पानी की कोई गले का वो तागा निकालकर अपने गले से बांधकर टूटी को लगाता है, तब भी तो उसके पैर जमीन को ही लग रहे हैं। उसके पैर जमीन को लग रहे हैं। कैसे मरता है बच्चा? मालूम हुआ, मैं कह रहा हूं, काशगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा पुलिस स्टेशन में, वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुम्हारे पास केस आया, अरे तुम तहकीकात नहीं, तुम तो मर्डर करना जानते हो। बच्चे को ले जाकर मार दिए और तरफ तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाप, आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद, वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठकर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं काशगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है कि अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीला लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करे। और हद तो ये हो गई कि उस बच्चे के बाप से सादे कागज पर अंगूठा ले लिए। और हजरत पुलिस ने, माशाअल्लाह काशगंज की पुलिस, आप यकीनन शैतान की पहली औलाद हैं, आप इब्लीस की पहली औलाद हैं। जो पुलिस वालों ने मारा, तुम शैतान की औलाद हो। तुम्हारे लुत्फे में फर्क है, तुम्हारे लुत्फे में फर्क है। मैं कह रहा हूं, उस बाप को जो अपने बेटे को खो दिया, जिसको तुमने पुलिस स्टेशन में मर्डर किया, तुम उसके अंगूठे के साइन लेकर उस पे लिख देते हो कि ये बेटे के बाप ने ये लिखा है कि वो पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है और मेरे बेटे ने खुदकुशी करके अपनी जान ले ली। अरे पुलिस वालों, जिन्होंने हरकत की, कल अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा ऐसा मर जाएगा या मार दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल पर क्या पहुंचेगा? ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और आवाज कैसे उठती है? नहीं नहीं, हमने बोल दिया, हम भी कंडेम करते हैं उसको, 2 लाख भिजा देंगे, 3 लाख भिजा देंगे। अरे सवाल यह पैदा होता है कि जब गोरखपुर के होटल में गुप्ता साहब को पुलिस ने मारा, उनकी मौत हुई, हम उसका कंडेम किए और कंडेम करते रहेंगे। मगर जब गुप्ता साहब की मौत हुई तो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार खानदान के पास पहुंच गए, बाबा पहुंच गए और गम का इजहार किया और जाकर कहा, उस गुप्ता साहब की बेवा से कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमारी सरकार आपके साथ है। और मेरे ख्याल से उनको 50 लाख का चेक दिया, गवर्नमेंट की नौकरी दी, पुलिस के लोगों को सस्पेंड भी किया, उनको गिरफ्तार भी किया। और समाजवादी पार्टी के बहुत चाहने वाले हैं। आपके अखिलेश ने क्या किया? गुप्ता साहब के घर गए और कहा, बहन ये 21 लाख का चेक है,
یہ 21 लाख का चेक है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान जब पुलिस की कस्टडी में मरता है, अगर वो मुसलमान है तो उसने खुद से खुदकशी कर ली। अगर वो मुसलमान है तो खुद से खुदकशी कर ली और उसके बाप से झूठ से फरेब देकर अंगूठा उसका लगाकर लिख दिया जाता है। और अगर वो मुसलमान नहीं है अरे मैं जिंदाबाद के नारे अपने नहीं लगाने वाला। सुनो मेरी बात, नहीं आप सुनो मेरी बात, मैं अपने जिंदाबाद के नारे आपसे मंगवाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, रसूल अल्लाह की उम्मत है, जिंदा रहने वाले हैं। और याद रखो इस बात को, याद रखो इस बात को कि जब तक हम जिंदा हैं दुनिया आबाद है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, ये मेरा फेथ है। मगर ये हाल देखिए आप कि एक मुसलमान मरता है तो कोई आवाज नहीं उठती है। क्या मेरे खून की अहमियत नहीं है? क्या मेरे नौजवान की जिंदगी की कीमत नहीं है? क्या मैं कोई गंदी नाली का कीड़ा हूं कि बैतुल खला में ले जाकर मेरे बच्चे को, बेटे को मार दिया जाता है? खुड्डी के बाजू मेरे बेटे की लाश को फेंक दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास उत्तर प्रदेश में कोई सियासी ताकत नहीं है। आपके पास मुट्ठी भर 3-4 मुसलमानों के आपके वोटों से जीते हुए कोई एमपी एमएलए होंगे। आपके पास क़यादत नहीं है, आपकी लीडरशिप नहीं है। आप मुत्तहिद अगर हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों की क़यादत बनेगी। अगर अल्लाह उस अल्ताफ की रूह को अगर अल्लाह हुक्म देगा कि बोलो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से क्या कहना है, तो अल्ताफ की रूह पुकार पुकार कर कहेगी कि गुप्ता मरा तो हुकूमत हिल गई, मैं मर गया तो हुकूमत नाम तक नहीं लेती। और ये इसलिए कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले कल का एक वाकया और आज का वाकया, इसको सामने रखो आप। गोरखपुर में बाबा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। गोरखपुर में किसी मुसलमान ने अपने घर के ऊपर एक हरा झंडा लहराया। वो पूरा गुंडों का टोला उस घर पर पहुंच गया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कहा कि तूने पाकिस्तान का झंडा लहराया। उल्टा घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मुसलमान पर केस बुक कर दिया बाबा की पुलिस ने। वो पाकिस्तान का झंडा नहीं है, मगर नफरत इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां कहीं इनको हरा दिखता ये लाल हो जाते हैं, जहां हरा दिखता ये लाल हो जाते। यानी अगर आप स्पेन में जाएंगे तो एक होता है कि वहां पे एक दिखाते हैं बैल को, लाल दिखाते हो, दौड़ता है मारने के लिए। इनका हाल इसी तरह का हो गया। पाकिस्तान का झंडा नहीं है। तुम लोग अंधे हो, तुम लोग जाहिल हो, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। तुम्हारी काबिलियत सिर्फ यही है कि तुम्हारे दिलों में मुसलमानों से नफरत कूट कूट के डाल दी गई। और तुमको मौका इसलिए मिल रहा है कि जब मुसलमान के घर को तोड़ा जाता है तो ना अखिलेश बोलेंगे, ना कांग्रेस बोलेंगी, ना बीएसपी बोलेंगी, सब खामोश बैठे रहेंगे। और अगर कोई एहतजाज बुलंद करता है, कोई सच्चाई को बयान करता है, तो उससे कहा जाता है ये मुसलमानों के वोट काटने आया, ये बी टीम है, ये फलां है। बोलो ना, तुम भी क्यों नहीं बोलते? मैं कह रहा हूं कि जो गोरखपुर में हुआ वो पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वो एक मजहबी झंडा हम लगाते हैं। मिलाद का जुलूस निकलता, हरा झंडा रहता है, तो क्या पाकिस्तान का झंडा है? पाकिस्तान का झंडा भी नहीं जानते, मगर नफरत फैला दी गई।